नमस्कार सबको. Myself Dr. Shubham Desle. I am the final year resident of General Medicine Department in Kalinga Institute of Medical Science. तो बेसिकली आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली लॉन्ग केस CNS का टॉपिक है. तो कोई टॉपिक डिस्कस करने से पहले जो केस होता है, केस कैसे आता है, उसको कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद उसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे. नॉट जस्ट द थ्योरेटिकल पार्ट बट दैट नॉलेज विल बी अप्लाइड इन द क्लिनिक्स. रियल लाइफ प्रैक्टिस में वो काफ़ी हेल्प करेगा, डायग्नोसिस में हेल्प करेगा और ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा. तो आज का जो टॉपिक है वो है कंप्रेसिव माइलोपैथी. तो कंप्रेसिव माइलोपैथी का पेशेंट कैसे आएगा, कैसे प्रेजेंट करेगा, उसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, कंप्रेसिव माइलोपैथी के पेशेंट्स में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली ये जो वीडियो है, ये वीडियो किन लोगों के लिए है? तो ये वीडियो है ऐसे डॉक्टर्स के लिए जो उनकी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जैसे GPs. दिस वीडियो इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स इन द मेडिकल कॉलेज like UG, those they are doing MBBS, like PGs, those they are doing general medicine, those they are appearing for their final exams. ठीक है. तो बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे केस से कि कैजुअलिटी में ये तो मान लो OPD में कोई केस आया है, तो वो केस हमने एडमिट किया. मेरे पास जो पेशेंट आया था हमने उसको एडमिट किया, उसका हिस्ट्री लिया, उसका डायग्नोसिस दिया. तो उसका हिस्ट्री बेसिकली क्या था? तो अर्जुन, a 43-year-old male who is from Bhubaneswar, Odisha. He is a tractor driver by profession. He was admitted 4 days back in the hospital. An informer he is himself. So basically Arjun presented with the complaint of weakness of lower limb for 3 months, weakness in the right upper limb for 3 months, and tingling and numbness of lower limb for 3 months. History of presenting illness. Patient apparently well 3 months back when he developed tingling, numbness and burning sensation in right lower limb, which was insidious in onset and gradually progressive to proximal part of right lower limb. Then after 15 days he developed same complaint in left limb, progressing to proximal part of left lower limb, and then after till the level of the limb pulse. However, he was not able to feel clothes and hot and cold sensation while bathing. Patient also complained of weakness in the lower limb, right more than left, initially in the right lower limb followed by left lower limb after 15 days. Weakness is gradual in onset and slowly progressive, due to which patient is unable to walk, and there is slipping of chappals while walking as he is unable to feel chappals. Initially when weakness started he was able to walk with the help of stick, but now within the span of 3 months weakness progressed to the extent that he is not able to walk with the support or stick. Patient also complained of difficulty in getting up from squatting position as he used Indian toilet. He complained of bilateral lower limb stiffness during squatting. Patient also complained of right upper limb weakness, which was gradual in onset and progressive, due to which he is unable to hold objects properly. However, there is no weakness in buttoning and unbuttoning, combing of hair and other overhead activities. He also complained of difficulty in getting up from bed and rolling over the bed. No history of breathing difficulty, no history of lower or upper backache. There is no history of difficulty in passing stool and urine. There is no history of electric shock like sensation on flexion of head radiating to spine. There is no history of trauma or fall on back. There is no history of headache, vomiting and altered sensorium. There is no slurring of speech, slowness of speech, memory, no delusion and hallucinations. There is no blurring of vision, drooping of eyelid, diplopia, able to see in all directions, able to chew food, close eyes and lips, no deviation of angle of mouth, drooling of saliva. There is no history of tinnitus and vertigo. There is no history of difficulty in speech, nasal twang, regurgitation of food and difficulty in swallowing. He is able to move his neck in all direction. He is able to lift his shoulder, able to roll the tongue and pull the foot. No history of sweating and palpitations and fever.
अगर पास्ट हिस्ट्री देखें तो पास्ट हिस्ट्री, नो सिमिलर इलनेस इन द पास्ट, नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, अस्थमा, टीबी एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ड्रग हिस्ट्री, एंड देयर इज हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन which was given in 2021 for COVID. Personal history, he takes mixed Indian diet, he is married with 2 kids, sleep is normal, studied up to 7th standard, and he has no addiction. Family history, no similar complaint in the family. Treatment history, he was treated for the same in the outside hospital, and there is no drug allergy history. On general examination, patient was conscious, cooperative, oriented to time, place and person, moderately built, pulse rate was 82 beats per minute, regular rhythm, good character and volume, no radioradial delay, no radiofemoral delay, on all peripheral pulses are palpable, BP is 126 by 82 millimeter of mercury, measured in right arm supine position, respiratory rate is 20 per minute, thorax, abdominal thoracic in type, temperature is 98 degree Fahrenheit, measured in right axilla. On examination, there was no pallor, icterus, cyanosis, clubbing and lymphadenopathy. Head to toe examination, there are no neurocutaneous markers. Neurocutaneous markers क्या क्या होते हैं वो आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. On examination of spine and cranium, which is normal. Neurological examination, higher mental functions, speech and language is normal. Memory is intact and no delusion and hallucination. Cranial nerve examination intact. मोटर को 4 हेडिंग्स में एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बल्क, एट्रोपी ऑफ थिनर एंड हाइपोथिनर मसल्स इन बोथ द अपर लिम्ब, टोन नॉर्मल इन बोथ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, पावर इन अपर लिम्ब, पावर अराउंड शोल्डर जॉइंट, elbow joint and wrist joint is normal, which is 5/5. Power or hand grip is weak on right side, good on left side. Lower limb power around hip joint right side is 2/5. Knee joint right side is 2/5 and ankle joint right side is 3/5. Power around hip joint on left side is 3/5. Knee joint on left side is 4/5. And power around ankle on left side is 4/5. When we go on reflexes, there are superficial reflexes and deep reflexes. Superficial reflexes में एक abdominal reflex आता है, एक plantar reflex आता है. तो basically abdominal reflex in this case was absent. Plantar reflex in this case was extensor bilaterally. Deep tendon reflexes in this case like bicep, tricep, supinator on both sides is present. And knee reflex and ankle reflex on both sides is exaggerated. Ankle clonus is present. There is no fasciculation seen. Now we go on sensory system examination. In sensory system examination, there is touch, pain and temperature. Touch, pain, temperature is decreased below the level of the nipple. Vibration sense is decreased below the level of the nipple. Joint position is decreased on upper limb and lower limb. When we do the examination of autonomic nervous system, in autonomic nervous system basically we'll do postural hypotension. So in this case postural hypotension is not present. There is no sweating and no abnormal or no tachycardia. There is no signs of meningeal irritation and no cranium and spine deformity. Other systemic examination like cardiovascular system examination, S1, S2 is heard and there is no murmur. Respiratory system examination, normal vesicular breath sound is present, and per abdominal examination, soft, non-tender and no organomegaly is seen. Summary: a middle-aged man presented with tingling and numbness and burning sensation of both the lower limb till nipple and weakness of both the lower limb, and right hand gradually progresses from distal to proximal, also involving muscles of trunk. On examination, lower limb has human neuron like weakness with increased deep tendon reflexes with bilateral plantar extensor with atrophy of thinner and hypothinner muscles with decreased sensation of pain, touch, temperature and vibration just below the level of the nipple. प्रोविजनल डायग्नोसिस में 3 प्रोविजनल डायग्नोसिस को 3 इसमें डिवाइड करना है.
पहले तो साइट कि कौन से साइट पे इंजरी, नहीं तो कौन से साइट पे पैथोलॉजी है। तो बेसिकली इन दिस केस आई एम सस्पेक्टिंग द पैथोलॉजी इज on the C8 to T1 segment of the spinal cord. C8 to T1 segment of the spinal cord. What pathways of the spinal cord are involved? कि spinothalamic tract, corticospinal tract and dorsal column pathways involved in this case. क्यों, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। पैथोलॉजी की स्पाइनल कॉर्ड में क्या पैथोलॉजी हो रही है कि जिसके वजह से ये सारा कंप्रेशन माइलोपैथी हो रहा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव माइलोपैथी। कंप्रेसिव माइलोपैथी माने क्या कि बाहर से कुछ चीज़ स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रही है, तो इसलिए कंप्रेसिव माइलोपैथी। अगर पैथोलॉजी इज कंप्रेसिव माइलोपैथी, लेकिन कंप्रेसिव माइलोपैथी का भी कुछ कॉज होगा, तो कंप्रेसिव माइलोपैथी का ये केस में कॉज वी आर सस्पेक्टिंग PIVD। ठीक है, तो व्हाट इज PIVD? प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क। तो ये थी समरी। तो बेसिकली इसमें अगर एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करें तो वीकनेस इन द लोअर लिम्ब फॉर 3 months, वीकनेस इन द राइट अपर लिम्ब फॉर 3 months, टिंगलिंग एंड नमनेस इन बोथ द लोअर लिम्ब फॉर 3 months। HOPI बोल दिया, हिस्ट्री के बेसिस पे HOPI बोल दिया, पास्ट हिस्ट्री बोल दिया, फैमिली हिस्ट्री बोल दिया, पर्सनल हिस्ट्री बोल दिया, ड्रग हिस्ट्री बोल दिया, एलर्जिक हिस्ट्री बोल दिया। अगर हिस्ट्री के बेसिस पे डायग्नोसिस बोले तो खाली हिस्ट्री के बेसिस पे डायग्नोसिस व्हाट वी विल टेल कि पेशेंट इज हैविंग अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरापेरेसिस, अपर ह्यूमन टाइप पैरापेरेसिस विथ वीकनेस ऑफ मसल्स ऑफ राइट अपर लिम्ब विथ decreased sensation just below the level of the nipple। ये हो गया। तो इसके बाद जर्नल एग्जामिनेशन करेंगे और जर्नल एग्जामिनेशन उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन, और सिस्टमिक एग्जामिनेशन के बेसिस पे सारा कुछ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पे मेन डायग्नोसिस देंगे। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के बेसिस पे व्हाट क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। तो बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, जैसे वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ टिंगलिंग एंड नमनेस। तो टिंगलिंग एंड नमनेस के कॉजेस पता चाहिए कि व्हाट आर द कॉजेस। तो बेसिकली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जब इन्वॉल्व होता है, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व होने के बाद पेशेंट में कंप्लेन ऑफ टिंगलिंग एंड नमनेस। बेसिकली टिंगलिंग एंड नमनेस और बर्निंग सेंसेशन के कॉजेज अगर बताए, तो अगर पेरिफेरल नर्व में पैथोलॉजी है, रूट में अगर पैथोलॉजी है, तो देयर विल बी टिंगलिंग एंड नमनेस और बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, दूसरा बात कि हिस्ट्री में, नेगेटिव हिस्ट्री में बोला गया है कि देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी। इन दिस केस नो हिस्ट्री ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी पेशेंट को हो रहा है जस्ट विद द वीकनेस, जस्ट विद द सिम्टम्स व्हेन द पेशेंट वाज एक्सप्लेनिंग, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंस बस इतना है कि डायफ्राम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। अपने केस में एज आई टोल्ड यू देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नहीं है तो माने डायफ्राम इन्वॉल्व नहीं है। अगर माने डायफ्राम इन्वॉल्व नहीं है तो ऑफकोर्स जो स्पाइनल लेवल होता है, जो सेगमेंटल लेवल होता है, स्पाइनल सेगमेंटल लेवल पे C3, C4, C5 इन्वॉल्व नहीं है। तो इंजुरी कहीं ना कहीं C3, C4, C5 के नीचे है। ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के फीचर्स आपको पता चाहिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहाँ होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का लेवल अगर ऊपर है, हायर सर्वाइकल कॉर्ड इंजुरी, लोअर सर्वाइकल कॉर्ड इंजुरी, ये आपको पता चाहिए। जैसे हायर सर्वाइकल कॉर्ड इंजुरी में क्वाड्रिपेरेसिस होगा, लोअर सर्वाइकल कॉर्ड इंजुरी में कंपलसरी नहीं है कि क्वाड्रिपेरेसिस होगा, यहाँ पे पैरापेरेसिस भी हो सकता है। हायर सर्वाइकल कॉर्ड इंजुरी में हॉर्नर सिंड्रोम होता है। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है ये आपको डिटेल में पता चाहिए कि हॉर्नर सिंड्रोम में बेसिकली टोसिस होगा, मिड्रियासिस होगा और एनहाइड्रोसिस होगा। ठीक है, तीसरा कि अगर पास्ट हिस्ट्री में आप कुछ बोल रहे हो कि कोविड वैक्सीन पेशेंट ने लिया है, तो एग्जामिनर माइट आस्क यू व्हाट आर द काइंड ऑफ कोविड वैक्सीनेशन, तो दैट यू शुड बी नोइंग इन द डिटेल्स। रिसेंट वैक्सीनेशन, अगर नेगेटिव हिस्ट्री में आप बोल रहे हो कि देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ रिसेंट वैक्सीनेशन, तो रिसेंट वैक्सीनेशन तो कौन सा वैक्सीन हो सकता है जो स्पाइनल कॉर्ड पैथोलॉजी कर सकता है, तो दैट इज रैबिस वैक्सीन। ठीक है, तो बेसिकली रैबिस वैक्सीन का भी आपको डोज पता चाहिए, रेजिम पता चाहिए।
तो मैं यहाँ पे ही बता दूंगा कि रैबिस वैक्सीन डिपेंड करता है कि ऑलरेडी पेशेंट ने रैबिस वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है। अगर ऑलरेडी पेशेंट ने रैबिस वैक्सीन नहीं लिया है तो उसका डोज है इमीडिएटली आफ्टर डॉग बाइट 2, फिर 3rd डे पे 2, फिर 7th डे पे 2, फिर 14th डे पे 2 और फिर 28th डे पे 2। ठीक है, अगर पेशेंट ने ऑलरेडी रैबिस वैक्सीन लिया हुआ है और उसके बाद उसको डॉग बाइट हो रहा है तो उसका रेजिम अलग है। डॉग बाइट होने के बाद तुरंत इमीडिएटली वैक्सीन देना है और उसके 3rd डे पे देना है, ओनली 2 डोजेस। देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग 5 डोजेस। अगर ऑलरेडी वैक्सीन लिया है तो खाली 2 डोजेस देना है, एक तो डॉग बाइट के बाद इमीडिएटली और उसके 3 दिन बाद। ये एक तो हो गया वैक्सीन के बारे में। दूसरा कि एज आई टोल्ड कि देर इज़ नो न्यूरोक्यूटेनियस मार्कर्स। तो न्यूरोक्यूटेनियस मार्कर्स क्या देखना होता है, जैसे स्टर्जहॉर्न सिंड्रोम में पोर्टवाइन स्टेन दिखता है, न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस 1 में कैफे ओलेट स्पॉट्स दिखता है, और न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस 1 में कैफे ओलेट स्पॉट्स तो दिखता ही है, उसके साथ और कुछ कुछ दिखता है, आप वो एक बार देख लेना। तीसरी बात ऐसा है कि अगर एट्रोपी ऑफ थिनर एंड हाइपोथिनर मसल है तो एट्रोपी के इसमें एग्जामिनर कैन आस्क यू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन एट्रोपी एंड डिस्यूज एट्रोपी। ये भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बल्क अगर देखें तो बल्क मेजरमेंट कैसे करते हैं कि ओलोक्रूनल अपर लिम्ब में अगर ओलोक्रूनल प्रोसेस है तो ओलोक्रूनल प्रोसेस से 10 सेंटीमीटर नीचे और 10 सेंटीमीटर ऊपर। अगर लोअर लिम्ब में बल्क मेजर करना है तो लोअर लिम्ब में बल्क मेजर कैसे करोगे, पटेला से 18 सेंटीमीटर ऊपर और लेग में पटेला से 10 सेंटीमीटर नीचे। दैट इज द एरिया विच यू विल गो फॉर मेजरमेंट ऑफ बल्क ऑफ योर मसल। ठीक है, तो अगर प्लांटर रिफ्लेक्स आप देख रहे हो, जस्ट आई टोल्ड यू इन माय केस द प्लांटर रिफ्लेक्स इज एक्सटेंसर, राइट। तो प्लांटर रिफ्लेक्स का भी इंपॉर्टेंस आपको पता चाहिए कि व्हाट इज द नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटेंसर। तो अगर प्लांटर रिफ्लेक्स अगर एक्सटेंसर आ रहा है तो प्लांटर रिफ्लेक्स अगर एक्सटेंसर आ रहा है तो दिस इज बेसिकली यूएमएन लीजन। ठीक है, और वाइब्रेशन सेंस पेशेंट माइट आस्क यू टू परफॉर्म वाइब्रेशन सेंस। तो वाइब्रेशन सेंस कहाँ देखोगे, मिडल मेलियोलस पे देखोगे, और कहाँ देखोगे, पटेला पे देखोगे, उसके ऊपर कहाँ देखोगे, एंटीरियर सुपरइलियाक स्पाइन में देखोगे, वर्टिबल जो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा होता है उस पे देखोगे। वर्टिब्रा से इजी होता है, एक लेवल भी आप पकड़ सकते हो कि वाइब्रेशन सेंस कहाँ तक इंटैक्ट नहीं है और कहाँ कौन से लेवल के ऊपर इंटैक्ट है। तो एटलीस्ट यू कैन गेट द लेवल ऑफ द डैमेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरी बात ऐसा कि वाइब्रेशन सेंस के लिए आप कौन सा ट्यूनिंग फोक यूज़ करोगे, तो आइडियली यू शुड बी यूजिंग 120 और 254। ठीक है, थर्ड पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आप पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखोगे तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन कैसे देखते हैं ये आपको पता चाहिए। तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली यू विल सी द बीपी व्हेन पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन। ठीक है, एंड आफ्टर 3 मिनट्स आस्क पेशेंट टू स्टैंड और उसके बाद बीपी लेना है। अगर बीपी सुपाइन पोजीशन में और उसके बाद 3 मिनट बाद अगर पेशेंट खड़ा होकर आप बीपी ले रहे हो, अगर डायस्टोलिक प्रेशर ये 10 mm ऑफ मर्क्यूरी से कम होता है, नहीं तो सिस्टोलिक प्रेशर 22 mm ऑफ मर्क्यूरी से कम होता है, तो दैट इज पोस्चुरल हाइपोटेंशन। साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन क्या क्या देखोगे, तो देर इज नेक रिजिडिटी साइन, देर इज कर्निक साइन। नेक रिजिडिटी बेसिकली क्या कि पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में सुला के खाली उसका हेड, उसका चिक उसके चेस्ट को टच करना है। अगर उसका चिक अगर उसके चेस्ट को अच्छे से टच हो रहा है तो देर इज नो नेक रिजिडिटी। एक कर्निक साइन होती है, कर्निक साइन में क्या होता है कि बेसिकली यू विल फ्लेक्स हिज नी जॉइंट and you will try to extend his, you will flex his hip joint and you will try to extend his knee joint, knee joint। अगर ये करते 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 उसको काफ़ी पेन होना स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज कर्निक साइन पॉजिटिव। ठीक है, क्रेनियम एंड स्पाइन डिफॉर्मिटी, कि स्पाइन में कहीं काइफोसिस तो नहीं है, स्कोलियोसिस तो नहीं है, स्पाइना बफिडा तो नहीं है, लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर तो नहीं है, और टीबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि गिब्बस तो नहीं है। तो ये सारा चीज़ें आप देखोगे। इंट्रामेडुलरी वर्सेस एक्स्ट्रामेडुलरी, कि इंट्रामेडुलरी लीजन क्या होता है, एक्स्ट्रामेडुलरी लीजन क्या होता है, तो दैट यू शुड बी नोइंग, और आगे जाके हम ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है। जब आप कोई रिफ्लेक्स पेशेंट में देख रहे हो, जैसे एंकल रिफ्लेक्स हो गया, नी रिफ्लेक्स हो गया, मान लो बाइसेप, ट्राइसेप, सुपाइनेटर, कोई भी रिफ्लेक्स अगर आप देख रहे हो, अगर वो रिफ्लेक्स डिमिनिश आता है तो इट डजंट मीन कि दैट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। ओके, फॉर दैट अगर कोई रिफ्लेक्स आ रहा है और उसको आपको बोलना है कि ये नेगेटिव है, तो उससे पहले करना पड़ेगा रीइंफोर्समेंट माने क्या कि रिफ्लेक्स के टाइम पेशेंट को इधर आस्क टू क्लिंच हिज टीथ, और नहीं तो अगर आप लोअर लिम्ब का रिफ्लेक्स चेक कर ले और एक नी रिफ्लेक्स नहीं तो एंकल रिफ्लेक्स, तो एटलीस्ट पेशेंट को बोलो कि ऐसे करें। पेशेंट को बोले कि 1 2 3 और 3 पे ऐसे करे, नहीं तो रीइंफोर्समेंट ऑफ टीथ करे, और तब भी स्ट्राइक करना है। तब जाके अगर पेशेंट का रिफ्लेक्स नेगेटिव आ रहा है और डिमिनिश आ रहा है, तो तब उसको लेबल कर सकते हो कि दैट इज डिमिनिश और दैट इज नेगेटिव रिफ्लेक्स। ठीक है। थर्ड कि पीआईवीडी का वो ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं कि पीआईवीडी में स्टेनोसिस कितना होता है, कि 10 mm से नीचे, अगर 10 mm से स्पाइनल कैनल अगर 10 mm से कम हो तो वहाँ पे डीकम्प्रेशन सर्जरी करना होता है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डीकम्प्रेशन सर्जरी, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। थर्ड कि सैक्रल स्पेयरिंग किस में दिखता है, कि सैक्रल स्पेयरिंग बेसिकली इंट्रामेडुलरी लीजन में दिखता है, नहीं तो इनकम्प्लीट लीजन में दिखता है। तो ये आपको पता चाहिए कि सैक्रल स्पेयरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। थर्ड कि हॉफमैन साइन क्या है, वॉटनबर्ग साइन क्या है, रोजोलिमोस रिफ्लक्स क्या है। तो हॉफमैन साइन बेसिकली क्या है, तो यू विल टेक फिंगर ऑफ द पेशेंट, मोस्टली मिडल फिंगर, और उसको ये पकड़ के ऐसे फ्लिक करना है, ऐसे फ्लिक करना है, ऐसे फ्लिक करना है, ऐसे फ्लिक करना है। तो बेसिकली क्या होगा, मेरे केस में अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पेशेंट के केस में ये जो टिप बाकी के फिंगर्स की जो टिप है वो ऐसे फ्लेक्स होगी और थंब से अडक्ट होगा। तो दिस इज हॉफमैन साइन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये पॉजिटिव होता है अर्ली ह्यूमन लीजन में। दिस इज द पॉजिटिव इन अर्ली ह्यूमन लीजन। ठीक है, दिस इज हॉफमैन साइन। वॉटनबर्ग साइन क्या होता है कि बेसिकली ये पेशेंट का हाथ है, दिस इज द हैंड ऑफ द पेशेंट एंड दिस इज डॉक्टर का हैंड, वो ऐसे करेंगे। तो ये मेरे केस में क्या हो रहा है कि थंब तो ऐसे ही है, ऊपर ही है, लेकिन वॉटरबर्ग साइन में क्या होता है कि थंब ऐसे नीचे चला जाएगा, थंब एकदम ऐसे अडक्ट हो जाएगा। तो दिस इज एबनॉर्मल। थर्ड रोजोलिमो रिफ्लेक्स बेसिकली आप लोअर लिम्ब में देखोगे, लोअर लिम्ब में हिल में ऐसे स्ट्राइक करना है और स्ट्राइक करने के बाद जो फिंगर्स है ऐसे फ्लेक्स हो जाएंगे, जो ग्रेट टो और लिटिल फिंगर से ऐसे फ्लेक्स हो जाएंगे। तो दैट इज एबनॉर्मल। ठीक है, दैट इज रोजोलिमो रिफ्लेक्स। तो ये सारे क्वेश्चंस है कि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है इन द लॉन्ग केस ऑफ पीआईवीडी। ठीक है, अभी पीआईवीडी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू।